Everyone. We are studying Canto 1, Chapter 3, Krishna. Krishna is the source of all incarnation, text 42. Satu samshravayam asha maharajam parikshitam prayopavistam gangayam paritam paramarshibi. Satu samshravayam asha maharajam parikshitam parayo vistatam gangayam paritam paramarshibi. Satu samshravayam asha maharajam parikshitam प्रायोपाविसुतं गंगयं परितं परमर्षिभा. Master, read the shloka. साधु Master, shloka पढ़ो. संश्रयम् असा महाराजं परीक्षितं प्रयोपविष्टितं गङ्गायां पारितां परमर्षिभिः सनिका पढ़ो श्लोका. हरे कृष्णा दीदी। सातु संसर्वयम् संसर्वयम् मास महाराजं परिषतं प्रियायो परिविष्टं गंगायां परितं परमर्शिवम् Right. पढ़ो श्लोका. साधु श्रवयम् आस महाराजं परीक्षितां त्रयोपाविस्तं गङ्गायं परितं परामर्शिभिः. What word meaning? Saha, the son of Vyasadev, too, again. Shamshavayam Ashaha, make the audible. Maharajam, onto the emperor, Parikshitam, of the name Parikshit. Praya Upavistam, who sat until death without food or drink. Gangayam, on the bank of Ganges. Paritam, being surrounded. Parama Rishibhi, by great sages. Puja Mataji, you are there. Shloka Pado. साधु साधु संश्रावयम् असा महाराज्यं परीक्षितं परायोपविस्तं गङ्गायां परिस्तं परमर्षिभिः. Translation and purport. Anyone else is there? Okay. Sukdev Goswami, the son of Vyasadev, in his turn delivered the Bhagavatam to the great emperor Parikshit. कल हम लोगों ने पढ़ा था how the Vyasadev, who is the incarnation of Krishna himself, imparted this Bhagavatam knowledge to whom? किसको ज्ञान दिया उन्होंने इस भागवतम का? अपने ही पुत्र व्यासदेव जी को, जो कि was an extraordinary self-realized soul. ठीक है, उनको उन्होंने ज्ञान दिया. Now in turn सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया? He delivered the Bhagavatam to the great emperor Parikshit Maharaj. किनके पोते थे परीक्षित महाराज? पांडवों के. ठीक है, who was the emperor of earth, who sat surrounded by sages on the bank of the Ganges, awaiting death without taking food or drink. ठीक है, जो किस सिचुएशन में थे अभी? He was about to die in 7 days. He was sitting on the bank of Ganges without any food or drink. I remember when Srila Prabhupada was leaving his body, he even stopped eating and drinking. He was just translating the Bhagavatam and just dictating the Bhagavatam translations. So this is called the Mahabhagavata, means giving up the all bodily needs. This called full absorption, giving up all the bodily needs and fully immersed in Bhagavatam. So this is our Acharya. Srila Prabhupada has also taught us, when he was leaving his body, he fully immersed in Bhagavatam, stopped eating and drinking, but no bodily needs. So that's how. तो कोई बोले हमें 7 दिन बिठाना, हम तो भूखे ही मर जाए. But here this is the absorption of Srila Parikshit Maharaj. So अभी यहाँ पे डिसेप्टिक सक्सेशन की बात हो रही है एक्चुअल में. तात्पर्य प्रपद बताते हैं, all transcendental messages are received properly in the chain of disciplic succession. कि जितने भी transcendental messages होते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको सही तरीके से लेने का क्या तरीका है कि गुरु परंपरा में लेना. This disciplic succession is called परंपरा. ठीक है,
Unless, therefore, Bhagavatam or any other Vedic literatures are received through the Parampara system, the reception of knowledge is not bona fide. क्या होगा? कि ज्ञान का जो knowledge है वो reception, it's not bona fide. ठीक है? So we need to, unless, जब तक ये भागवतम हम लोग परंपरा में ना लें, तो हमारा जो ज्ञान है वो bona fide नहीं कहलाएगा. ठीक है? व्यासदेव delivered the message to Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami to Suta Goswami received the message, who is the disciples. Suta Goswami is Shaunika Rishi, जिन्होंने नैमिषारण्य में सीरीज को बताया. ठीक है? One should therefore receive the message of Bhagavatam from the Suta Goswami or from his representative and not from any irrelevant interpreter. तो हमें क्या है, जो सूत गोस्वामी के आगे रिप्रेजेंटेटिव है, हमें उनसे भागवतम श्रवण करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए. ठीक है? Emperor Parikshit received the information of his death in time, and he at once left his kingdom and family and sat down on the bank of the Ganges to fast till death. अब यहाँ पे मेरे एक विचार आ रहा है मन में. अभी जैसे यहाँ पे है परीक्षित महाराज, ठीक है, उनको 7 दिन का नोटिस पहले से ही था कि नाउ यू आर गोइंग टू लीव योर बॉडी. सो व्हाट ही डज, ही डिडंट गेट पैनिक. अब जैसे उनको श्राप मिला था तो वो काउंटर श्राप दे सकते थे, ही कैन काउंटर एक्टेड दैट जो भी वो श्राप था, मगर उन्होंने किया नहीं, एक्सेप्टेड. पहली बात है, ये हमारी अपनी लाइफ में, दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, वी शुड हैव द एक्सेप्टेंस वट एवर कमिंग आवर वे, either it's good or bad. Don't make to like change the things or argue about it, why it is happening. मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, ऐसे कैसे हो गया, ये है वो है. Don't do this, you know. As says, everything is working under Krishna's direction. So do you think he will put, if you are sincere, so do you think he will put you in some situation where you cannot be more Krishna conscious? He will put you there where you can be more Krishna conscious. Though sometimes situation seems outwardly so bad or is not reasonable, but ultimately it's going to benefit you only. ठीक है? परीक्षित महाराज का situation देखा जाए, was great emperor, and he just got a curse from a small child, Brahmana child, you know, and he might have counteracted, but he accepted. Okay, 7 days. He took the opportunity to fully immerse oneself in Krishna consciousness. He left his kingdom, left his wife, everything in just 1 second, and went back. What is the higher purpose I can do right now? What is the best thing for me to do? What is the best thing I can do in my last 7 days? And the people says, you should hear the Bhagavatam. अंतिम समय सबसे बेस्ट बात क्या है? हरि कथा का सुनना, हरि चर्चा सुनना, वो भी एक हरि के शुद्ध भक्त से. And what he did, he sat on the Ganges water without drinking, having food, just not even missing a single moment without Krishna consciousness. Fully heard the message. And for us people, we don't know about our last time. For us, there are so much uncertainty. हमारे लिए तो हमें पता ही नहीं है ना. So how much uncertain is our life? So is it we are taking the things? Moreover, हम लोगों में acceptance भी नहीं है. The thing is, whatever comes our way, we don't have acceptance. We create so much havoc by our own mind and all. We need to have the acceptance what Krishna has sent our own way. If you are sincere, don't worry about it. Krishna will take care of you. Why to worry? Isn't it? But the thing is, we are not that much, what we call, we didn't come to the point of satisfaction, but we come to the point of saturation, we come, but not to the point of satisfaction. As I gave the example previously, okay, when you are in the prasadam hall, you are honoring the prasadam, okay? तो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, एक खा रहे हो, दूसरा खा रहे हो, तीसरा खा रहे हो. So will you stop by your own satisfaction? No. You will stop eating gulab jamun when the saturation point will come, when you cannot pop in one more gulab jamun. You might be desiring, oh, I should have more stomach, more mouths, but now it's all full up to the neck. Otherwise, if you take one more, you will vomit. You know, that is not satisfaction. You stopped by your saturation point. You know, similarly, but the satisfaction it comes accepting whatever it comes our own way, accept it and be happy with that. Either it's good or bad. You know, so Parikshit Maharaj, first thing he accepted, another thing he went for the higher purpose. So for us also, we have to accept that life is uncertain. As Yudhishthira Maharaj says, ahani ahani bhutani in Mahabharata, that की सबसे अचंभे की बात ये है भौतिक जगत में कि हर मनुष्य के सामने एक व्यक्ति जा रहा है. आज किसी रिश्तेदार के घर में डेथ हो रही है, कभी हमारे पड़ोसियों की हो रही है, किसी की हो रही है, हम देखते हैं, हम लोग, हमारा रोना क्या था है, बच्चे जवान रह गए, ओ हो, आगे जो उनका क्या होगा, अकेली औरत रह गई, ओ हो. We cry for that thing, we don't cry that person is left, उसका क्या destination होगा.
Did he went back to Godhead or did he just wasted his human life? We don't cry for that thing. And उससे ये lesson नहीं लेते यार ये गया है मेरा भी time आने वाला है. I should be getting more serious about my devotional life right now. I should get more serious about my practices. No, we don't take the lessons. This is very wonderful thing as Yudhishthira Maharaj says. Ahani ahani bhutani. We see people dying, leaving the body, but we don't. So सबसे uncertain life किसकी है? हमारी. क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने मरना कब है. So we can die anytime. आप ये नहीं बोल सकते माता जी अभी तो हम जवान हैं यार अभी तो बड़ा time है. Old is the person who is near to death, and no one of us know who is near to death. हम में से किसी को नहीं पता कौन के सबसे करीब है. नहीं पता ना. क्या पता मैं हूँ कोई और हो. We don't know. I'm 28, but I don't know. I'll be like dying before you all. अभी तो मेरा भी तो एज काफी है ना. I'm still young, not that old, but I can die anytime. So death is not possible for me. So what is when the life is uncertain, then do the certain things. Understanding? When the things are uncertain, then do something certain. And what is certain? The certain is Krishna consciousness. It is for sure certain is there that it is going to take you to Krishna consciousness, to ultimate Goloka, back to Godhead. So we have to take up this process quite very seriously. As Parikshit Maharaj, as Srila Prabhupada has set the example for us. So like that way. As stated here, all great sages, rishis, philosophers, mystics, etc. went there due to his imperial position. They offered many suggestions about his immediate duty, and at last it was settled that he would hear from Sukadeva Goswami, Lord Shri Krishna. Thus the Bhagavatam was spoken to him. अब परीक्षित महाराज को जब नोटिस मिला 7 दिनों का that he is going to leave the body, so what he did, he went to the sages. किसके पास गए? So for one more lesson from here, whenever we are on the verge on a very difficult situation, कि हमारे पास इतना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है आपको नहीं पता आगे क्या करना है, टेक शेल्टर ऑफ द वाइज सेजेस. किसकी हमें शेल्टर लेनी चाहिए? जो व्यक्ति विजडम में है, जिसके पास ज्ञान है, उनसे जाके सलाह लेनी चाहिए कि व्हाट शुड आई डू नाउ. एंड दिस इज व्हाट परीक्षित महाराज डिड. ही डिडंट टुक द एडवाइस फ्रॉम हिज वाइफ बिकॉज दे नो दे आर अटैच्ड. अब पत्नी है वो अटैच्ड है ना, तो क्या बोलेगी, वो तो रोएगी बेचारी. बच्चे हैं, दे आर नॉट दैट मच. तो ही वेंट टू द साधुस, इंक्वायर्ड फ्रॉम देम दैट आई एम नाउ एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, व्हाट आई मेंट टू डू, बताइए मुझे क्या करना चाहिए. तो उनको बहुत सारे कार्य बताए गए. अच्छा आप ये करिए. अल्टीमेटली क्या बोला गया? टू हियर द श्रीमद् भागवतम, एंड फ्रॉम whom? Sukadeva Goswami, who is a very self-realized soul. So that was suggested to him. So we should always, whenever we are in the situation when nothing seems to like clear, तो आप क्या कीजिए, एक ऐसे स्टेज से हमें साधुओं से हमें पूछना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, बिकॉज दीज आर द पर्सन इन विजडम एंड दे कैन गिव अस द राइट आंसर. ठीक है. और शास्त्र की तरफ मुंह मोड़ना चाहिए. जैसे भगवत गीता है हमारी, उसमें बहुत सारे उत्तर हैं, पढ़ने का प्रयास तो कीजिए, सब कुछ मिलेगा. Then it's mentioned further, Sripad Shankaracharya, who preached Mayavad philosophy and stressed the impersonal feature of the absolute, also recommended that one must take shelter at the lotus feet of Lord Shri Krishna, for there is no hope gain from debating. ठीक है. तो क्या बोला गया है? शंकराचार्य भी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य मायावादी फिलोसफी बता रहे थे कि भगवान निरंकार हैं, ऐसा है वैसा है. ठीक है. मगर अंतिम में उनसे भी रहा नहीं गया, और क्या बोला अपने शिष्यों को? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मत तेरे. A foolish person, by your word jugglery you're not going to get any benefit. Better you chant the holy names, better to chant bhaj govindam, take the name of Govinda, then you will be like having some gain. So indirectly Sripad Shankaracharya admitted that what he had preached in the florid grammatical interpretation of the Vedanta Sutra cannot help one at the time of death. कि मृत्यु के समय आपका जो ज्ञान है वेदांत सूत्र का, ये आपको जो फिलोसफी है, ये आपको हेल्प नहीं करेगा. इट्स ओनली द डिवोशनल सर्विस. At the critical hour of death, one must recite the name of Govinda. This is the recommendation of all great transcendentalists. Sukadeva Goswami had long ago stated the same truth, that at the end one must remember Narayana. अब बोलोगे माता जी ये तो बोला कि अंतिम में भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम अभी से क्यों ले रहे हैं? हम तो अपने अंतिम समय में लेंगे. पहली बात तो ये, पहला तो उत्तर यही आ जाता है कि हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब है. ठीक है. तो हमें क्या पता हमारा डेथ टाइम कब है? नहीं पता ना. ठीक है. हमें पता ही नहीं. अभी रिसेंटली नाउ वन डेथ हैड हैपेंड इन फ्रंट ऑफ अस. दैट पर्सन, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, जस्ट लेफ्ट द बॉडी. ही हैड द प्रसादम, डूइंग एवरीथिंग, चलते फिरते चल बसे. अब क्या पता, हमें नहीं ना पता कि चलते फिरते हम भी चल बसे, कुछ पता है.
तो इसीलिए हमें नहीं पता कि हमारी डेथ टाइम कम है। और मोर ओवर इफ यू थिंक दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम कि एट अभी आप मस्ती मौज कर लो, ठीक है, इंद्र तृप्ति कर लो, अंतिम समय भगवान का नाम ले पाओगे, भाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जैसे मैंने वो कथा सुनाया था कि देयर वाज अ पर्सन, उनके पुत्र चाहते थे कि ये जो ओल्ड हो चुका है व्यक्ति अब ये भगवान का नाम ले, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। तो उन्होंने कई साधुओं को बुलाया कि मैं हमारे जो पिताजी हैं थोड़ा भगवान नाम में रुचि लें, तो कोई तो रुचि तो आई नहीं उनमें। तो फिर एक साधु के साथ भेजा कि चलो कहीं घूम आते हैं। तो वो जो उनके पिताजी थे वो उन साधु के साथ कहाँ जाते हैं, काशी विश्वनाथ, जहाँ पे मतलब अंतिम संस्कार किया जाता है या पिंडदान किया जाता है। तो वो साधु बड़ी जगह लेके जाता है मगर उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं दिखता उसकी चेतना में। तो फाइनली वो उसको सुबह सुबह लेके जाता है और वहाँ काशी घाट में संस्कार हो रहा होता है, मतलब कई चिताएं जल रही होती हैं। तो ये व्यक्ति काफी मौन में आ जाता है, मतलब मौन धारण करता है, तो कुछ बोलता नहीं है। और जब ये वापस आता है अपने रूम में तो बहुत रोना शुरू करता है। तो साधु को लगता है कि शायद अब इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसको शायद आत्म साक्षात्कार हुआ है कि जीवन का हम सबका अंत में ऐसा होगा तो हमें भगवान नाम लेना चाहिए। तो उसने पूछा उस साधु ने कि भाई आपको क्या आत्म साक्षात्कार हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो बोला पूरी जिंदगी साला बेकार कर दिए फालतू के बिजनेस में, इससे अच्छा लकड़ी का बिजनेस करता, फुल टाइम बिजनेस था। So still his mentality was business mentality. See, he didn't realize anything. So the same thing कि हमारी जैसी चेतना बन जाती है एक बार तो मृत्यु के समय भी हमारी कॉन्शियसनेस वैसी ही रहती है। We cannot change it. You know, we cannot change it. That's why we try to practice the holy names and chant the holy names. क्योंकि अंतिम समय में ऐसे नहीं निकलेगा, लिया होगा तो निकलेगा, नहीं लिया होगा तो नहीं निकलेगा। अब जैसे one of the Prabhuji was telling in a lecture, he was telling कि जो आसुरिक परिवृत्ति के लोग होते हैं वो हरिनाम ले ही नहीं सकते, चाहे वो कीर्तन सुन रहे होंगे मगर मुख से हरिनाम नहीं बोल सकते, क्योंकि आसुरिक प्रवृत्ति बहुत होती है। अब आसुरिक प्रवृत्ति किसमें है? जो हरिनाम नहीं लेता, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हरिनाम लिया नहीं तो हाँ अंतिम में कैसे निकलेगा? सो दैट वाज द थिंग, ठीक है। तो अंत में नहीं निकलता, इसीलिए हमें प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से हमें हरिनाम लेना शुरू करना चाहिए। डोंट स्लीप। So we should not क्या कहते हैं, तो we should not take it casual. And one more thing, those who sleeps in the Bhagavatam class, for them the Bhagavatam class is like a razor edge. Okay, you're walking on a razor edge. If the little slip is there, the cut is there. You might miss out something that is going to help you in your devotional life. So don't sleep, those who are under the modes right now and trying to sleep. So please don't go to sleep. Okay. So try to pay attention as Parikshit Maharaj paid attention. He was even without food and water. आप लोगों को फिर भी खाना मिल जाएगा इसके बाद में, so थोड़ा जागे रहिए, ठीक है। So it's stated here. So this is it says so this is the recommendation of Grace Transcendentalist that we should study the Bhagavatam or we should try to remember Lord Narayana at the time of death. And वो कैसे आता है? शुरू से अगर हमने नाम लिया हो, ठीक है। So that is the essence of all spiritual activities. In pursuance of this eternal truth, Srimad Bhagavatam was heard by Emperor Parikshit. तो इसलिए ये किसने सुनी? परीक्षित महाराज जी ने सुनी। It was recited by Sukadeva Goswami, and both the speaker and the receiver of the messages of Bhagavatam were duly delivered by the same medium. ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना के उनका उद्धार हुआ और परीक्षित महाराज का भागवतम सुन के उद्धार हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि हमें भागवतम रिसाइट करना नहीं आती है तो हमें श्रवण करना चाहिए, श्रवण से हमारा जो है उद्धार होगा। मगर श्रवण भी किस तरीके से करना है? Sincerity से, with full faith, then the benefit will be there. As says, if the speaker is potent, if the listener is potent, then the seed of bhakti will fructify. Otherwise, there will remain some discrepancies. Okay, so this is here it. So we'll move to the next shloka now. कृष्णे स्वाधामोपागते धर्म ज्ञानादिभिः सा कलौ नास्तादृशं मिषा पुराणार्कोदुनोदितः. Translation and purport. This Bhagavad Puran is as brilliant as the sun, and it has risen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion. ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें बताया गया है जैसे द्वापर युग में भगवान स्वयं थे, ठीक है, द्वापर युग में तो खुद थे ना, तो धर्म स्थापन हुआ। अब वो चले गए यहाँ से अपना पास टाइम एंड करके, तो कलयुग के वासियों के पास क्या रहा? As many times it says, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, तो कृष्ण सूर्य समान है, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या आएगा? अंधकार।
अंधकार आएगा कि नहीं? तो कृष्ण थे नहीं तो अंधकार आना तो कलयुग के जीवों का क्या? तो it says this Bhagavad Puran is as brilliant as sun. It arisen just after the departure of Lord Krishna. कि जैसे ही भगवान अपनी लीलाएं खत्म करके भगवान धाम गए, अपने धाम गए, then this Bhagavatam was given to us. So Krishna appeared. He disappeared and appeared in the similar way in the Bhagavad Puran, इस पुस्तक के रूप में, and accompanied by religion, knowledge, etc. Person who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. तो अगर आप अंधकार में हैं, ज्ञान चाहिए, लाइट चाहिए, so take the shelter of this Amala Puran, that is a spotless Puran. ठीक है, तो हमें इसकी shelter लेनी चाहिए. So then there won't be any andhakar in our life. You all want light in your life, so the light will come from this Purana by studying and hearing the Bhagavatam. Okay? So Lord Shri Krishna, his eternal dham or abode, where he eternally enjoy himself with his eternal associates and paraphernalia, and his eternal abode is a manifestation of his internal energy, where the material world is a manifestation of his external energy. ठीक है, जो भगवान का धाम है वो दिव्य है. ठीक है, वहां पे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए वहां लाइट के लिए. भगवान के शरीर में ही इतना तेज है कि वो जो धाम है भगवान का उसी से इल्यूमिनेट हो जाता है. मगर भौतिक जगत में भी नीड सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू हैव सम लाइट, बट दैट इज मटेरियल. दिस इज the bhautik jagat is due to the external energy, that is maya, and the eternal potency is in spiritual world. ठीक है, when he descends to the material world, he displays himself with all paraphernalia in his internal potency, which is called Atma Maya. ठीक है, जब भगवान आते हैं भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो सारी चीजें दिव्य होती हैं उनसे रिलेटेड. सो एवरीथिंग इज डन बाय द इंटरनल पोटेंसी. ठीक है, उसमें माया का कोई लेना देना नहीं होता. सो इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ही डिसेंड्स बाय हिज ओन पोटेंसी. His form, name, fame, paraphernalia, abode, etc. are not there for creation of matter. तो इसलिए भगवान के अपनी पोटेंशियल मतलब अपनी दिव्यता उनकी बनी रहती है जब वो भौतिक जगत में आते हैं. अब हम भौतिक जगत में हमारी दिव्यता नहीं बनी है, दो वी आर ऑल्सो सुपीरियर नेचर, वी आर स्पिरिट, बट वी आर कंडीशन बाय दिस बॉडी. इजंट इट? ये मैटर है ना, तो मैटर से कवर हो चुके हैं हम लोग. सो we get under the influence of the modes, but Lord doesn't. चाहे वो उनका नाम हो, फेम हो, पैराफिनेलिया हो, कुछ भी हो, भगवान से रिलेटेड जो भी होता है वो कभी भी भौतिक जगत के अधीन नहीं आता. It is all the time दिव्य, transcendental. Okay, he descended to reclaim the fallen souls and to re-establish codes of religion which are directly enacted by him. तो भगवान क्यों आते हैं भौतिक जगत में? जो पतित आत्माएं हैं उनको दोबारा भगवत धाम लेके जाने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए. ठीक है, to protect his devotee and to establish the dharma. Except for God, no one can establish the principles of religion. भगवान के अलावा कोई भी धर्म स्थापन नहीं कर सकता. Either he or a suitable person empowered by him can dictate the codes of religion. या तो भगवान स्वयं या तो उनसे कोई जो empowered soul है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद आए तो उन्होंने ये भागवतम और भागवत गीता का प्रचार पूरे पाश्चात्य देशों में किया. ठीक है, उनको धर्म स्थापन करने का जरिया बताया, सभी लोगों को एक सनातन धर्म के प्रति लेके आए, है ना, सबको बताया कि आप कौन हैं, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है. इससे पहले किसको पता था? Nobody knows. Understand? So it says रियल रिलीजन मीन्स, अब रिलीजन का क्या मतलब है? रिलीजन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड रिलीगो से आया है जिसका मतलब होता है टू रीलिंक विद द सुप्रीम. रिलीजन इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रिलीगो, दैट मीन्स टू रीलिंक विद द सुप्रीम. ठीक है, रिलीजन का मतलब लिंक करना. रिलीजन का मतलब ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई. दिस इज नॉट द रिलीजन एक्चुअली. रियल रिलीजन इज ऑफ द सोल दैट एस्टैब्लिश वंस रिलेशन विद द सुप्रीम पर्सन. दैट इज रियल रिलीजन. ठीक है, तो रियल रिलीजन यहाँ क्या बोला है? मीन्स टू नो गॉड, आवर रिलेशनशिप विद हिम एंड आवर ड्यूटी इन रिलेशन विद हिम एंड टू नो अल्टीमेटली आवर डेस्टिनेशन आफ्टर लिविंग दिस मटेरियल बॉडी. कि हम हमारा संबंध क्या है भगवान के बारे में जानना, हमारा उनसे संबंध क्या है, क्या हमें करना चाहिए जब हमें उनके संबंध के बारे में पता चले, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है आफ्टर मृत्यु के बाद में हम कहाँ जाने वाले हैं शरीर छोड़ के. सो दिस इज रियल रिलीजन. The conditioned souls who are entrapped by the material energy hardly know all these principles of life. अब जो भौतिक जीवी है, बुद्धि जो भौतिक जीवी है उसको नहीं पता कि भाई मैं क्यों आया हूँ या मेरा क्या पर्पस है लाइफ का, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना है. They don't know anything but they only know like animals eating, sleeping, fearing and waiting. खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, बस. They are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity. ठीक है, अब इतना ये कार्य चार एक्टिविटी जानवर भी करते हैं और अगर मनुष्य भी वही कर रहा है तो किसी जानवर से कम है क्या?
नहीं, बेशक वो एक बड़े से अपार्टमेंट घर में रहता है, जो जानवर है वो एक गली में घूमता है, मगर क्या है, मगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट रेज्ड, स्टिल ही इज ऑन द एनिमल टेंडेंसी है। तो कार्य तो वैसे ही है ना जानवरों वाले, जानवर ही कहलाएगा फिर, मगर टू लेगेड एनिमल, ठीक है। सो दे आर मोस्टली एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट। दे आर स्टिल मोर ब्लाइंड इन द प्रेजेंट एज ऑफ क्यूरल और कलयुगा। कलयुग में तो ज्यादा ब्लाइंड है, क्यों, क्या है, इन द कलयुग द पॉपुलेशन जस्ट अ रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स। दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्टेटमेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं कलयुगा, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। इट सेज दैट इन द कलयुगा द पॉपुलेशन इज जस्ट अ रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स, कि जो पॉपुलेशन है दे आर जस्ट द एडिशन ऑफ द एनिमल्स, कि और एनिमल्स पैदा हो रहे हैं, बस मनुष्य नहीं पैदा हो रहे हैं, जानवर पैदा हो रहे हैं। They have nothing to do with the spiritual knowledge or godly religious life. अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के प्रति ध्यान ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहते आप, कौन हो तो आप जानवर ही हो फिर। जानवर क्या पूछता है, कहाँ खाने को है, कहाँ सोने को है, कहाँ मेटिंग है, तो कहाँ डिफेंडिंग है। जो मगर मनुष्य है, अगर वो भी यही सब देख रहा है, तो भाई वो जानवरों में ही एडिशन है ना, रॉयल, क्या बोलते हैं इसको, रॉयल एडिशन ऑफ द एनिमल्स। थोड़े सूट बूट वाले जानवर हैं भाई, थोड़े हाई लेवल के हैं, मगर है तो जानवर ही। So they have nothing to do with the spiritual knowledge, godly religious life. They are so blind that they cannot see anything beyond the jurisdiction of subtle mind, intelligence, and ego. But they are very much proud of their advancement in knowledge, science, material prosperity. भौतिक जगत के एडवांसमेंट में बड़े प्राउड रहते हैं, मगर खुद का पता नहीं कि है कौन। तो ऐसे जो लोग हैं वो अंधकार में ही है। आपको यही नहीं पता आप कौन हो, पीएचडी कर ली मगर पता ही नहीं कौन हो, तो बताएंगे अपना नाम बताएंगे, मगर ये तो बॉडी डेजिग्नेशन है। अब कल को आप मैं कोई नैनो चलाऊं तो मैं क्या बोलूँगी, मैं नैनो हूँ? नहीं भाई, हम तो ड्राइवर हैं। अब अपने बारे में ही नहीं पता तो पीएचडी करके क्या करोगे आप। They can risk their life to become a dog or a hog. कहते हैं hard endeavor to go to hell. भौतिक जगत के जो लोग हैं इतना हार्ड वर्क करते हैं, किसके लिए, नर्क में जाने के लिए। सब नर्क में जा रहे हैं, क्योंकि अगर भौतिक जगत में इवन इफ यू वांट टू गो टू, अगर आपको स्वर्ग भी जाना है या भगवत धाम भी जाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हरि नाम लेना है या शास्त्र पढ़ोगे ना। नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे। इट्स सिंपली एन हार्ड एंडेवर टू गो टू हेल। इतना 14-14 घंटे जॉब कर रहे हो भाई, किसके लिए, नर्क में जाने के लिए। नर्क में ही जाओगे, कि हरि नाम तो ले नहीं रहे ना। सच एन हार्ड एंडेवर। हो वेरी गुड। कोई बोलता है हम तो सीईओ है जी, हमारे पास समय ही नहीं होता। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई कलीग तो नहीं कह सकते, ऐसे ही मतलब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते थे, और मेरा थोड़ा घर से मुझे ट्रेन में आना पड़ता था ऑफिस के लिए। तो ऐसे ही मेरे भैया के फ्रेंड थे, उससे थोड़ा सीनियर है, तो हम लोग ऐसे ही है ट्रेन में शाम के समय साथ में ही आगे, मैं शायद ऑफिस से जल्दी निकल गई, तो पिछले साल की बात है। ऐसे मैं जनरली बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा अपना रीडिंग होता है, तो आई डोंट स्पेंड मच टाइम विद द थिंग्स, बट ही वाज देयर, तो वो कुछ बातें कर रहा था, आई सेड ओके चलो बैठ जाते हैं। तो ही वाज टेलिंग मी हाउ बिजी हिज लाइफ, ही वाज न्यूली मैरिड एट दैट टाइम। तो मुझे बता रहा था कि मेरी लाइफ कितना बिजी है, मैं 2-2 दिन घर ही नहीं जाता हूँ, तो देखो मेरा कितना बिजी है। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही वाज आल्सो एन इंजीनियर, मी टू। ही वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। तो मुझे बता रहा था पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स, पूरे टेक्निकली ऐसा वैसा, मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, ऐसा है वैसा है, एंड इतना बता रहा था कि देखो अभी इतना पैकेज है, इसके बाद में इतना हो जाएगा, फिर मेरा ऐसा होगा वैसा होगा। ही वाज टेलिंग ऑल दोस थिंग्स, एंड मैं मन में सोच रही थी भाई, ना खाने की पता है ना सोने की पता है, इतने पैसे कमा के नर्क में जाना है। नरकी तो जा रहे हो, अभी नई नई शादी हुई है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को पता नहीं है। हाँ, एंड क्या हुआ, आई वाज टेलिंग सो मेनी थिंग्स कि मैं इतना हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे बिना तो काम ही नहीं होता ऑफिस में। एंड आई रिमेंबर ही गॉट अ कॉल, मैंने कुछ बात नहीं की, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम। ही गॉट अ कॉल इन मिडल फ्रॉम हिज ऑफिस, एंड समथिंग हैड हैपेंड इन द ऑफिस। मतलब इसने कुछ सीडी बनाया था, तो पता नहीं कुछ मिला नहीं, तो इसको बहुत डांट पड़ी वहां से, एंड इसका मुंह एकदम से ऐसे पूरा ऐसे हो चुका था। एंड then I took the opportunity to speak. Then I asked him what had happened. इसे नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं, बताओ क्या हुआ। कहते देखो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सो हो जाए तो इतना सुनाते हैं, मैं 2-2 दिन घर नहीं आता हूँ, इतना काम करता हूँ, ये है वो है। फिर मैंने उसको समझाया, मतलब ये भौतिक जगत में ऐसा ही होगा, गधों की तरह काम करोगे, गधों की तरह लाते भी पड़ेंगे। So better don't get bewildered by all those things. You should take some give time to yourself and to your family. If you work like that, this is the time you can have some time for yourself. Then I try to make him understand, but the only thing I realized from this कि people are so proud to tell, see how much work we do. मगर भाई किस लिए कर रहे हो, नर्क में जाने के लिए। They are so happy they are so proud to go to hell,
and they are telling we are working 24 hours 48 hours continuously without eating. कितना गर्व की बात है भाई, इतना गधों की तरह कार्य करते हैं, कितनी इसमें उनको मिलती है, और गधों की तरह फिर लाते भी पड़ती हैं उनको। हाँ, गधों को लाते पड़ती है ना, मालिक से क्या बढ़ते हैं, तो वो उनको भी लाते पड़ती है, मगर फिर भी उनको होश नहीं आती है कि भाई भौतिक जगह से थोड़ा समय अपने लिए होना चाहिए। एक 2 वक्त की रोटी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, मगर 2 वक्त का खाना आराम से खाने को नहीं है। चाहे ऑफिस में जाना है, ऐसे चलते-चलते एक रोटी मुँह में तो जा रहे हैं भागते हुए। भाई जानवर भी आराम से खाना खाता है, तो मनुष्य का तो जीवन ही पूरा कहाँ की एडवांसमेंट है, टोटल डिग्रेडेशन। यू नो, भागते-भागते तो खाना खा रहे हो, आपके पास समय नहीं है खाना खाने का भी आराम से। जिसके लिए इतनी कमाई कर रहे हो, वो भी बैठ के खाने को नहीं है। हाँ, simply going to a hill. So it says, the personality of Godhead, Shri Krishna, appeared before us just a little prior to the beginning of Kali Yuga. And he returned to his eternal home practically at the commencement of Kali Yuga. While he was present, he exhibited everything by his different activity. He spoke the Bhagavad Gita specially and eradicated all pretension principles of religiosity. And prior to his departure from this material world, he empowered Sri Vyasadeva through Narada to compile the message of Bhagavatam. And thus both the Bhagavad Gita and Bhagavatam are like torch bearers for the blind people of this age. अब जैसे भगवान ने जाते जाते भी हमारा उद्धार करके गए, पहले तो भगवत गीता सुना दी और उसके बाद में भागवतम का भी पूरा अरेंजमेंट करके गए, व्यासदेव जी को एम्पावर किया और नारद मुनि की गाइडेंस में व्यासदेव जी ने पूरा भागवतम लिखित रूप में हमारे सामने रखा। तो भगवत गीता और भागवतम, दे आर द टॉर्च लाइट फॉर अस ब्लाइंड पीपल टू लुक इनटू द लाइट, what to do and what not to do, what is right, what is not right. So that will be, we are understanding through Bhagavad Gita and Bhagavatam. In other words, if man in this age of Kali want to see the real light of life, they must take to these 2 books only, and their aim of life will be fulfilled. तो ये देखो कितना अच्छा लाइन है, क्या बोला प्रभुपाद ने, अगर आप कलयुग जीवी हैं, अगर आप सच में सही रोशनी चाहते हैं, तो आप भगवत इन 2 किताबों का श्रवण कीजिए, पढ़िए, then your whole aim of your life will be fulfilled. So Bhagavad Gita, aim of life is not to become CEO or a very big person with the status and the money. It will remain here only and you are not going to be happy. Frustration आएगी आएगी, मगर जब हम spirituality में आते हैं, भगवत गीता हरि गीता का करते हैं, then there is like things we can grow. So Bhagavad Gita is the preliminary study of Bhagavatam and Srimad Bhagavatam is the summum bonum of life. तो प्रिलिमिनरी स्टडी भगवत गीता है, उसके आगे समम बोनम है भागवतम, लॉर्ड श्री कृष्ण पर्सोनिफाइड, भागवतम तो भगवान स्वयं है. We must therefore accept Bhagavatam as the direct representation of Lord Krishna. One who can see Srimad Bhagavatam can see also Lord Shri Krishna in person. They are identical. जैसे मैंने पहले बोला कि जो भागवतम को देख सकता है भगवान को भी देख सकता है. इसकी कथा मैंने आपको सुनाई थी कि अगर श्रद्धा पूर्वक भागवतम पढ़ेंगे तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे. So don't take Bhagavatam as different from Krishna. No, it's Krishna himself. So do pay attention very carefully. Then your life, you will see the all miracles and you will become very happy. Okay. So we'll stop here. So don't do hard endeavor to go to hell, but do hard endeavor to go to Goloka. Okay. So yes. So any of you having any questions or comments or anything, so any realizations, I will take up, or if nothing, then we'll stop. We are having 6 minutes, I think. Yes. Yes, Akshay, you want to say something? You are late today. अलार्म बजा ही नहीं. Okay. देखो एक अलार्म ने क्या कर दिया, पूरी क्लास मिस करा दी हैं. कितनी पावर है एक अलार्म में. You can listen to the recording. I will be uploading on YouTube. Yes, Pooja Mata जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं माता जी, हरे कृष्णा, वो गलती से हो गया था. So any understanding from today? Hard endeavor to go to hell or hard endeavor to go to Goloka? तो गोलोगा माता जी. Don't become Muda. ये Muda नहीं बनना. जी जी. Yes, anyone else? कुछ कहना है कि निद्रा में जाना है आपको? नहीं कहना है आपको? Okay, anyone else? और किसी को कुछ कहना है? Having any questions or comments? Yes, आस्था माता जी. हरे कृष्णा माता जी, हरे बीच में कृष्णा. पॉइंट आया था ना. Loud. यस यस. हाँ यस, बीच में पॉइंट आया था ना माता जी के, लाइक लोग कहते हैं कि चलो मर जब डेथ आएगी तब हम हरि नाम ले लेंगे, अभी क्या जरूरत है. ये पॉइंट था ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉइंट मुझे याद आ रहा था लेक्चर में, लाइक मैं सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि लाइक इफ यू सी, यदि आपकी अटैचमेंट एक रसगुल्ले से भी होगी ना इस मटेरियल वर्ल्ड में,
आपको उस रसगुल्ला खाने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस वही ABCD पढ़नी है, वापस से आपको वो करना है। यदि आपकी एक अटैचमेंट उस रसगुल्ले पे भी है तो वही हु मतलब इज फिर योर डियर, आज तो हु इज योर डियर। भरत महाराज का फॉल डाउन तो डियर की वजह से हुआ। आपका डियर कौन है आपकी लाइफ का? हाँ स्लीप माता जी, हाँ इग्नोरेंस, स्लीप। स्लीप। ये तो देखो इनकी भी स्लीप है, ये अभी भी सो रहे हैं इतना सुनाने के बाद। Okay, so our dear is sleep. Okay. Yes, thank you Asta for sharing. Anything else? और किसी को कुछ कहना है? Or any questions? No question? Right? Yes, Akshay. Can you suggest any measure to control sleep? To control sleep, Yeah. be very cautious of what you have to do. जब आपके घर पर आग लगी है, नींद आएगी? है अक्षय? घर में आग लगी, नींद आएगी? नहीं। अपने आप जाएगी ना। मुसीबत पीछे हो तो क्या नींद आएगी? नहीं आएगी ना। तो उसी तरह से अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि अगर मैं सो गया तो ये जो चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। When you know the importance of the other thing, you will never feel asleep. हमें नींद तभी आती है जब हमें रुचि ना हो और या तो हमें उस चीज की इंपॉर्टेंस पता ना हो। अभी देखो तो मुझे भी नींद आती है, मगर 8 बजे से पहले मुझे उठना ही पड़ता है क्योंकि मुझे पता है भागवतम पढ़नी है, because it is important. If you know the importance of the things you want to do, you will never feel asleep. आपके एग्जाम होते हैं, आपको पता है कि समय कम है, तो आप सोओगे क्या? नींद ऐसे ही भाग जाएगी ना। तो उसी तरह से we are preparing for our death exams. So why you are feeling sleepy? You need to understand that there is that house is on fire. There is an urgent need of Krishna consciousness. So whenever it comes to Krishna consciousness, I should not sleep. So need to understand the importance, the priorities of your activities. You will not fall asleep. और if you अगर अपने यहाँ तो प्रॉपर रेस्ट लो, आप रात को जल्दी सोइए ताकि आपकी पूरी नींद आए, तो आप सुबह जल्दी उठ के तो अपना काम कर सके। और मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, तो उससे भी हो सकता है। तो हैव प्रॉपर स्लीप, मेक योर शेड्यूल इन सच ए वे दैट यू कैन हैव द प्रॉपर स्लीप। और अगर आप उससे ज्यादा सो रहे हो, देन इट्स कॉल्ड टोटली लेजीनेस। तो फिर तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू मिस व्हेन आई विल स्लीप। ठीक है, सोते रहोगे तो सब मिस कर जाओगे। जैसे can I will tell the story some other time. Maybe next time, we don't have much time right now. So understanding Akshay, if you don't get proper sleep, make your schedule in such a way कि आपको proper नींद हो सके। अगर extra ले रहे हो, so then try to understand the importance of the matters. ठीक है? Actually कम ही हो रही है। हाँ? Actually कम ही हो रही है। Actually I slept around 3 AM, so it was difficult to wake. 3 बजे सो रहे हो तो भाई कैसे उठोगे सुबह? 3 बजे क्या Actually मुझे टाइम ही नहीं पता चला, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो वो इतना बह गया कि मुझे 2 बजे सोना था, तो और 2 बजे सो के 7 बजे उठना था। ये देखो तो कितने वो इंग्रोस्ड है भाई कंटिन्यू हो गया पढ़ाई मुझे में, समय का ही नहीं पता चलता। हम लोग को भी इतना इंग्रोस्ड होंगे भागवतम में जब समय का ही ना पता चले, हैं? आपके क्लास में तो बिल्कुल नहीं पता चलता। वो हाफ एन आवर तो बहुत बहुत स्पीडली पास होता है, मतलब टेम्पल वाले भागवत का टाइम नहीं जाता और यहाँ का टाइम ऐसे ही उठ जाता, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। Actually, अभी टाइम है नहीं, आई विल टेक अप लेटर ऑन। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट मैटर, मेक योर शेड्यूल इन सच अ वे so that you can have the proper rest, so that you won't feel sleepy. Okay, so we'll stop here for the time being. Let's chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna everyone.